कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था, मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया हर बार क्यों जीतता है. वाई ऑलवेज इंडिया हैज अपर हैंड. द रीजन इज From serving the skies to shaping the future warriors, his journey is nothing short of extraordinary. So, let's salute his achievements and dive into his incredible story. Welcome to Vidya Bhavan Voices, Mr. Harin you. Kumar Gandhi, sir. Thank you so much. It's such a great honor to have you here with us. So, can you tell us something about your upbringing, like where you were born and what interests you had in childhood? Okay, my childhood was spent in Lunawada, which is a Mahisaka district here. It was a small taluka at that time, right? I have one brother and sister. We were living in Lunawada, and there was no much exposure to the armed forces. But what has given me that zest and that inclination towards Air Force is that sometimes in 2 or 4 months there used to a plane, civilian plane, just go. It went about our hometown, and I was very curious how it will be, how they are flying. So that was the reason I was somewhere inclination. I had that inclination towards Indian Air Force, and I used to like a soldier a lot. So I belong to a Jain family, where no one goes to armed forces, right? Yes. But I had that interest, and it is my parents and especially my mother's encouragement, because he has never worried or never stopped. When I got selected into Indian Air Force, my mother has said, I don't worry, मुझे कोई चिंता नहीं है. अच्छा. है ना, मरना तो कभी भी है. Yes. जब टाइम आएगा तो सबको जाना है, तो आप जाओ, मेरा आशीर्वाद है, आपको कुछ नहीं होगा. सो दैट वाज द वर्ड दैट हैज मेड मी do some more hard work and join Indian Air Force. Nice, such well, like listening to such words from your parents is itself a big motivation. So हम मान सकते हैं कि आपकी मामा जो है वही आपकी इंस्पिरेशन रही थी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए. इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए वो इंस्पिरेशन नहीं थी, बट जो मेरा ख्वाब था इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का, उसको कभी रोका नहीं. कभी कभार आजकल पेरेंट्स ये समझते हैं ना कि बच्चा फौज में जाएगा तो शहीद हो जाएगा. मेरे मम्मा या पापा ने कभी नहीं सोचा कि ये जाके शहीद हो जाएगा. बोला कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें जो पसंद आता है वो करो, और उसी तरह से मैं आगे बढ़ा. बाकी हमारी पूरी पुश्तों में कोई भी फौज में है ही नहीं. Okay. So you're the first one to be. Yeah, I'm the first one from our family, and hardly any Jain generally joins defense services. Yeah. Okay. So how did you prepare for and then succeeded in the IAF selection process? Yeah, see, I'll tell you, I had a habit of playing a lot of games, running and hanging at whichever place is available. I used to do that, right? So that has made me physically little bit tough, and I used to read 3 paper even before I got the opportunity to attend Air Force recruitment. I had a habit of reading at least 3 newspapers. They were Gujarati newspaper, and I had little bit more. I was more crazy about English language, so that has helped me to clear my Air Force selection process in a very convenient way. Normally, when we went, there was no selection process conducted in Indian Air Force at Gujarat. So we had to go to Mumbai. Near about more than 1240 students, 39, 1239 precisely. Those students, candidate, we went to Mumbai, and out of that, 2 were selected. So I was one of them. One was Marathi and I was Gujarati. So I can say from Gujarat, at that time I was the only one. So we got selected. There was a written examination, and when we have cleared written examination, there was physical fitness test. Nowadays it is called as PFT, physical fitness test. So they have conducted, and I stood out in a good way. And because of my good performance, I was selected as an instructor. Normally, when you join armed forces, you go as a cadet, Yes. right? You learn from.
but they have nurtured, they have selected me as an instructor. So I was given a training as a teacher, or we say ground training instructor in Indian Air Force. Okay. That's So so that was the nice. best part of that my selection process, that I got chance to become an instructor. Okay. In the Air Force Academy or the training part, when you were Training being part, trained yeah. about it. In training part, uh, there were near about 2,200 candidates, those who were undergoing the training, and there was already one Gujarati guy was there, and I was the second one. So out of 2,200, only two were Gujaratis. And initially on the first day when I went to mass, I couldn't eat anything. I came out. Near about 3 to 4 days passed. Then I started eating only dal wala pani and rice. And after 2 3 weeks, I got used to that food. And nowadays the food is also good, right? I am talking about my time. It is Yes, in yes. 90s. Okay, Yes. I joined in October 1990. So we had a 16 month of training, and in that, someone has told me, has guided me. So do not fear anything. Anything, if somebody is telling you to do, you try to be the first volunteer. So you will not have a fear. Yes. If you are looking someone, people are falling, people are getting injured, then you may have a fear. But if you are first volunteer, right, if somebody is asking who can do, and if you say yes, I will do, so that will remove the fear from your mind. So that advice helped me a lot. Whenever there was a chance of being volunteer, I always used to be the first as a volunteer, and that has helped me to take up my training in a very good way. It was very challenging, very difficult. There are jungle trainings, there are weapon trainings, there are sports, gymnastic, and lot more. Anatomy, physiotherapy. We have to learn almost everything as an instructor, because we are going to train the Air Force person and the raw recruit. Okay. Yeah. So, what were some of the memorable missions or operations that you were a part of? See, I'm always part of Kargil War. Kargil War, yes. So Kargil War was the most famous and most joyous moment I can say. See, for फौजी, अगर मैं हिंदी में बताऊं, तो फौजी के लिए जब युद्ध करने की नौबत आती है, युद्ध में जाना होता है ना, तो हम उसको त्योहार मानते हैं. बिकॉज हमने जो वर्दी पहनी है, हमने वर्दी पहनी इसीलिए है कि हमें देश के लिए कुछ करना है. जब तक युद्ध नहीं होता तभी भी हम बहुत कुछ करते हैं, बट एक युद्ध में जाना, वो एक कोई भी सैनिक के लिए एक सर्वोपरि टाइम होता है. सर्वोत्तम मैं मानता हूं कि इससे बढ़िया कोई टाइम, इससे अच्छा कोई टाइम हो ही नहीं सकता, कि जहां पर आपको चांस मिलता है कि जिस लिए आपने वर्दी पहनी थी, तो वो अभी आप करके दिखाइए. एंड कारगिल युद्ध वॉज वन ऑफ दैट मोमेंट. हमें जब हम अपनी यूनिट में थे, तो अचानक ही हमको बुला के बताया गया कि सभी लोग आ जाइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है. हम इकट्ठे हो गए और हमको बोला कि आपको यहाँ से सीधा एक ऑपरेशन लोकेशन पे जाना है. मैं लोकेशन की बात नहीं करूँगा कहाँ पर गए थे, बट बोला कि आपको ऑपरेशन लोकेशन पे जाना है. तो हमारे पास तो हमारे बिलोंगिंग से सब तो होने चाहिए. हमें बता दिया गया कि आप अपनी घर पे इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपकी जो भी 3-4 महीने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं, वो एक बैग में, हो सके तो सिर्फ एक बैग में, नहीं तो 2 बैग में भर के रख दें. एयरफोर्स की ट्रक जाएगी, पूरा आपका सामान लेके जहां आप जा रहे हो उधर वो पहुंचा देगी. हमें भी पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं. हाँ, तो हमने फिर, हमारा बड़ा यूनिट था, रडार था, पूरा करीब 20-22 घंटे उसको हमें डिसमेंटल करके लोड करने में लगा था. ये समझो कि यहाँ से अगर ये पूरी स्कूल है, पूरी स्कूल को उठा के कहीं और लोकेशन पे ले जानी है तो कितना होता है. हमने सिर्फ 22 घंटे में इतना बड़ा प्रीमाइसिस था, पूरा वैकेट करके हम हमारे ऑपरेशन लोकेशन पे चले गए थे. और करीब 24 घंटे बाद हमें पता चला कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है. सो सिक्योरिटी भी बहुत मेंटेन करनी होती है. बट कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था, मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया हर बार क्यों जीतता है. वाई ऑलवेज इंडिया हैज अपर हैंड. द रीजन इज पर्पस. व्हेन पाकिस्तान फाइट और अटैक, वो क्या करते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं, वो कहीं कुछ छीन लेना चाहते हैं. जैसे हमारी जमीन हो गई, हमारी शांति हो गई, हमारी समृद्धि हो गई, कुछ ना कुछ
वो छीनना चाहते हैं, लूट लेना चाहते हैं, या लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। पब्लिक में माहौल है उसको डिस्टर्ब करके दहशत फैलाना चाहते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, हम कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करते, वी नेवर डू फर्स्ट अटैक। बट जब दूसरी बार अटैक करते हैं, किसी ने अटैक किया तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं, है ना। मोदी जी ने बताया था ना Yes. कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा ही है, पहले से यही रवैया है। हम पहला वार कभी नहीं करेंगे, बट अगर आपने वार किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो यही हमने किया, उनको हमने नेस्त नाबूद करने की नौबत पे आ गए थे। बट एक चीज, यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, Yes. हाँ, तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि इंडिया ने क्यों कारगिल वॉर को फुल फ्लेज वॉर नहीं बनाया। देयर वॉज रीजन। कभी भी जब जो ऑडियंस भी सुन रहा है, इनको भी मैं बताना चाहूँगा कि जब हम जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया, कारगिल किया, ऑपरेशन पराक्रम हमने किया था, लाहौर जाने की तैयारी थी, तो आप लोग क्या समझते हो पूरा पाकिस्तान को ले लेना चाहिए। बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि इंडिया अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, राइट। तो अभी हमारे, आप देखा होगा कि करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हमारी जो सरकार है फ्री में राशन दे रही है। अगर 30-40 करोड़ और भी आ गए तो हम, हमारे जो बच्चों जैसे आप जैसे बच्चों के लिए हम एक अच्छा भविष्य तैयार कर रहे हैं। वो पूरा जो सोर्सिस है वो तो उनको संभालने में चला जाएगा। तो पीओके हम ले सकते हैं, पीओके हम चाहे अभी भी ले सकते हैं, बट हमारी सरकार हरदम ये चाहती है कि हमारा जो ग्रोथ है, जो हमारा विकास दर है, जो हमारा डेवलपमेंट का जो एक पेस है, वो डिस्टर्ब ना हो और रुके नहीं। जीत लेना बहुत आसान है, राइट, बट हमें ये देखना है कि हमारी जो विकास की गति है वो कभी धीरे नहीं हो जाए, जी. क्योंकि फिर आपका जो भविष्य है, आप जो सपने देखे बैठे हो, वो सपने भी शायद डिस्टर्ब हो सकते हैं। दैट इज द रीजन। मैं जनता को ये भी बताना चाहूंगा, ऑडियंस को, कि पीओके हम लेके ही रहेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है, बट उसका हर एक का टाइम होता है। अभी हमारे पास पीओके लेने का टाइम लेके हमारा रिसोर्सेज बर्बाद नहीं करना है। अभी हमें इंडिया को, और जो भी बच्चे यहाँ पर सुन रहे हैं, आपके भविष्य को हम एक अच्छे बोर्ड पे ला के रख दें, और उसके बाद हम पीओके ले ही लेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। सो सर, अपार्ट फ्रॉम कारगिल, ऐसा कोई मोमेंट है जो आपको लगा हो कि बहुत चैलेंजिंग है और आपने उसको कैसे हैंडल किया, या कारगिल के थ्रू ही कोई ऐसा मोमेंट? हाँ, मैं दो मोमेंट की बात करूंगा। सबसे पहले तो कारगिल की, और मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि आपके जैसी कोई छोटी, आपसे भी बहुत छोटी एक स्टूडेंट ने हमें कार्ड लिख के भेजा था कारगिल वॉर के दरमियान। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस, कार्ड्स, ये सब आते रहते थे। उसमें लिखा था कि डियर सोल्जर अंकल, वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें पूरा विश्वास है कि आप जीत के ही आओगे, हमें कोई चिंता नहीं है। जय हिंद, आपकी बेटी। तो ये जो कार्ड था हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। अपने उसने छोटे राइटिंग भी इतने अच्छे नहीं थे, छोटे बच्चे के राइटिंग कैसे होते हैं, ऐसे राइटिंग थे उसने अपनी भाषा में, बट हम समझ सकते थे कि उसने खुद लिखा था। एक उसने फ्लैग बनाया था, एक सोल्जर का सैल्यूट ड्रॉ किया था उसने अपने लेवल का, और तो हमने उसको हमारे मिरर के पास में चिपका दिया था। युद्ध के दौरान भी हर रोज सुबह हम जब उठते थे, ड्यूटी के लिए जाते थे, नॉर्मली तो 24x7 था वो, बट जब भी हम अपनी ड्यूटी के लिए बाहर निकलते थे तो वो कार्ड हम देख के जाते थे। तो एक छोटी बच्ची ने भी एक अपनी प्यारी सी भाषा में कार्ड बना के हमारा बहुत मोटिवेशन किया था। और चैलेंजिंग की बात है तो वो भी एक चैलेंजिंग की बात है। उसमें ये था कि खाना जो आता है युद्ध में भी सोल्जर को खाने की तो जरूरत पड़ती है। एक बार ऐसा मोमेंट आया कि हमारी जो एक लॉजिस्टिक चेन है वो अभी डिस्टर्ब हो चुकी है, और ये जो आपको 5 पूड़ी और अचार अभी जो आया है चाय के साथ, वो शायद 2 दिन तक और कुछ ना भी आए। युद्ध का समय था। सबसे अच्छी बात यह है, जब ऐसा मैसेज आया तो किसी ने भी उसके ऊपर रोष व्यक्त नहीं किया, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि हम यहाँ पर जान की बाजी लगा के बैठे और आप खाना नहीं बेच सकते। किसी ने भी, हम करीब 215 के आसपास थे, किसी ने एक बार भी नाराजगी नहीं जताई, बोलते कि कोई बात नहीं। अच्छी बात ये थी कि हमने 2 पूड़ी खा ली, 3 बचा के रखी थी, दोपहर में 1 आध पूड़ी और खा ली थी, जिसको जैसी भूख लगी थी ऐसे खाया था। बट रात को करीब 11:30-12 बजे हमारे लिए खिचड़ी और ये सब आ गया था। वो चेन जो सप्लाई चेन थी वापस रिस्टोर हो गई थी।
तो आ गया था। तो ये बहुत अच्छा होता है कि कभी कभार फौज में क्या है, यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग। और ये चीज़ सिर्फ फौज में नहीं है, एज ए स्टूडेंट या एज ए एक आम नागरिक भी इसको हरदम अगर प्लान बी लेके चले या कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ लेके चलेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी लाइफ बहुत इजीली कटेगी। सो सर, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या मिशन जो आपके लिए बहुत प्राउड का हो आपकी पोस्ट सर्विस लाइफ से? दोनों चीज़ कनेक्टेड है। ड्यूरिंग एयरफोर्स मुझे हरदम ये पूछा जाता था कि अब तो पहले गुजराती हो, गुजराती लोग फौज में आते नहीं है, सिर्फ पैसा कमाते या बिजनेस करते हैं। तो तब मैं ये बोलता था, आई ऑल्सो बिलोंग टू जैन फैमिली। तो मैं ये बोलता था देखो भाई ऐसा है, मजाक में जवाब देता था कि हम फौज में तो नहीं आते, बट फौज का जो पेमेंट होता है ना उसमें बहुत सारा हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं तो उससे फौज का पेमेंट भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, राइट। वो तो मजाकिया दौर जवाब था, बट मैंने ये सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। गुजरात के ऊपर एक, गुजरात हर जगह पे इतना आगे है तो ये चीज़ में क्यों पीछे रहे। एक रशियन पायलट ने 2008 की बात है, मैं और वो रशियन पायलट थे, हम एरो इंडिया शो में थे बेंगलोर में। तो डिनर के बाद ऐसे घूम रहे थे तो बातचीत में ये बात हुआ कि व्हाट इज़ योर प्लानिंग आफ्टर एयरफोर्स। तो मैंने कुछ सोचा नहीं था क्योंकि मैंने तो एयरफोर्स में ही रहता था। तो बातचीत में ये हुआ कि इन्होंने मुझे सेंटेंस बताया और वो सेंटेंस मेरे दिल को छू गया, मेरे खून में उतर गया, मैं बोल रहा हूँ। वो सेंटेंस था, उसने ये बताया कि मिस्टर गांधी, इफ यू रियली वांटेड टू एक्सप्लोर योर लाइफ, he said explore, not enjoy, right? He said if you really wanted to explore your life, change your profession thrice. Further he said there is no guarantee you will get money or not, but there is one thing is guaranteed, everything will come out which is inside, right? तो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग गई, तो इसको और जो मुझे सुनने को मिलता था इसको मैंने कंबाइन किया और मैंने सोचा कि नाउ आई शुड लीव एयरफोर्स, I should leave Indian Air Force and do something by which the representation of Gujarat is increased manifold. तो मैंने ये टारगेट लेके एयरफोर्स छोड़ा कि मैं एक एकेडमी या ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूं और करीब 500 बच्चों को अपनी तरफ से मैं फौज में भेजूं। अभी तक 96 कैडेट्स हैव जॉइन आर्म फोर्सेस एंड मोर देन 150 दे आर इन गुजरात पुलिस। एंड मैं वैसे भी बहुत जगह पे ऐसा अवेयरनेस और ये सब फैलाता रहता हूँ, उसके थ्रू अगर मोटिवेट हो गए कौन अगर गए तो वो मुझे ध्यान में नहीं है। दैट्स इनक्रेडिबल सर। सो ऐसा कोई पीस ऑफ एडवाइस आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी और तरीके से कंट्री को सर्व करना चाहते हो? बहुत मैं एक नहीं, मैं 3 एडवाइस देना चाहूँगा, राइट। बात यह है कि आपने पूछा एयरफोर्स के, सी फौज में क्या होता है कि कभी कंप्लेन नहीं करते कोई। आजकल के जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट सुन भी रहे हैं, इनको भी मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट का कंप्लेनिंग नेचर बहुत हो चुका है। ये एक आदत पड़ गई है, कहीं भी चीज़ देखा तो हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस ये है कि बिफोर कंप्लेनिंग फॉर एनीथिंग और एनीबडी और वॉट एवर, आस्क योरसेल्फ कि कैन आई डू समथिंग इन दिस। जॉन एफ कैनेडी ने 1965 में बहुत अच्छी बात बताई थी। व्हेन ही हैज टेकन ओवर एज अ प्रेसिडेंट, ही सेंट वन मैसेज टू द अमेरिकन्स। उसने ये बोला था कि डो नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, बट आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। यही चीज़ मैं हर एक स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि कभी भी कई चीज़ जो आपको पसंद नहीं है या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एक बार कंप्लेन करने से पहले ये अपने आप को पूछ लीजिए, क्या इसमें मेरा कोई योगदान हो सकता है, क्या उसको मैं कुछ ठीक कर सकता हूँ। और दूसरी एक बात, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आजकल मैंने देखा है हर एक बच्चे पेरेंट को, अपने पेरेंट को दूसरे पेरेंट के साथ कंपेयर करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर 7 बार जन्म भी ले ले, उसके माँ बाप ने जो सेक्रीफाइस करके जिस लेवल पे उसको लाके रखा है वो बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो मैं आपको और आपके द्वारा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हर एक स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा कि नेवर कंपेयर
योर पेरेंट्स विथ एनीवन्स पेरेंट्स। हम कभी कभार पेरेंट्स, जो बच्चे पेरेंट्स को बोल देते हैं कि तुम्हें क्या पता, तने शू खबर पड़े, राइट? सो दिस इज वेरी बैड। बेटा मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आपको बोलना नहीं आता था तब आपके मम्मी और पापा ने, काका मामा चाचा, ये सब एक एक लेटर आपको बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, और अभी आप ही हो मम्मी को पूछते हो कि तू चुप रहे, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। इट इज योर पेरेंट्स who has brought you up to this level, so now it is your duty to respect them and fulfill their dream also. वो अपने ड्रीम आपके ऊपर नहीं थोप रहे, बट इनकी जो इच्छा है वो आपको पूरी करनी है, उनकी सेवा करनी है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो आपके स्वार्थ से, जो अपने स्वार्थ से पहले आपका स्वार्थ यानी कि स्टूडेंट का स्वार्थ देखते हैं, वो है माँ बाप और गुरुजन। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, बिकॉज ये 3 लोग ऐसे हैं जो अपना स्वार्थ बाद में देखेंगे, पहले आपका स्वार्थ देखेंगे। तो यही चीज है। और तीसरी एक चीज, कहीं पर भी आजकल आपने देखा है कि पहलगाम आतंकवाद हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने इधर नहीं किया। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये पहलगाम आतंकवाद को हमने मानते कि ये सबसे बड़ा आतंकवाद था, तो मैं आप सबको एक उससे भी बड़ा एक आतंकवाद जो चल रहा है इंडिया में, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो पहलगाम से भी बड़ा आतंकवाद जो इंडिया में हमारे आसपास चल रहा है वो है ड्रग्स। आजकल ड्रग्स मैंने सुना है कि छोटे छोटे बच्चों ने भी लेना शुरू कर दिया। तो आपके माध्यम के द्वारा मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी आंख और कान खुला रखें, कहीं पर भी ऐसी एक्टिविटी चल रही है तो उसको आप अपने स्कूल में बताएं, कोई बुजुर्ग को बताएं, एडल्ट्स को बताएं। पुलिस की भी सिस्टम है आजकल, आप ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, और आपकी जो पहचान है उसको गुप्त रखी जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा अपना आंख और कान खुला रखे और इस ड्रग जो ट्रैफिकिंग या ड्रग एडिक्शन हो रहा है उसको कहीं पर कंट्रोल करने का और बंद करने का ट्राई करें। क्योंकि आतंकवाद में अगर किसी की हत्या होती है तो वो आदमी का डेथ हो जाता है और उसकी फैमिली को उसका लॉस सहन करना पड़ता है। बट अगर एक बंदा ड्रग एडिक्ट बन जाता है फैमिली में, तो नहीं मरते हुए भी सब लोग मर जाते हैं। एक तो वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली खत्म हो जाता है, जो उसकी फैमिली है सोशली बॉयकॉट हो जाती है, बिकॉज इट इज द फैमिली ऑफ ड्रग एडिक्ट। फिजिकली खत्म हो जाते हैं, मेंटली खत्म हो जाता है। ड्रग एडिक्ट जब उसके पास पैसा नहीं होता तो सबसे पहले हाथ घर में मारता है। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा हर एक स्टूडेंट से कि कहीं पर भी ऐसा ड्रग वाला, कहीं पर कुछ भी आपको जानकारी मिले तो उसकी जानकारी आप अपने स्कूल में बताएं, सिस्टम को बताएं। और इस तरह से वर्दी नहीं पहन के भी आप फौजी बन सकते हो। लास्ट एक चीज सोल्जर की तरफ से एक मैसेज है कि जो बॉर्डर की चिंता है ना वो आप छोड़ दीजिए। हम इतने काबिल है कि भारत देश को अगर बॉर्डर्स की बाहर से आ रहे कोई अटैक है तो हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। हमें जो चिंता है वो चिंता है हमारे आसपास रह रहे राष्ट्र विरोधी तत्वों की, जो हमारे समाज को और हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर उनको आप लोगों ने लड़ लिया तो बॉर्डर बाहर की चिंता हम आपको करने नहीं देंगे। या आपने जितनी एडवाइसेस दी है सर, वी ऑल प्रॉमिस दैट विल टेक दिस इनटू कंसीडरेशन। सो सर, जैसे कि हम यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, तो हमने देखा है कि उनमें फोकस या फिर लीडरशिप की जो स्किल्स होती है या टीम वर्क होता है, वो इन चीज़ों में कहीं पीछे रह जाते हैं, दे लैक इट। सो हाउ कैन दे डेवलप द स्किल्स ऑफ लीडरशिप या फोकस एंड रेजिलियंस इन देयर स्टडीज और स्पोर्ट्स? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अभी एक कॉलेज में गया था, नाम नहीं बताऊंगा, करीब 150 स्टूडेंट थे और मैंने पूछा व्हाट इज योर गोल, तो इट वाज गोल। सिर्फ 3 लोगों ने मुझे जवाब दिया था। ठीक है, मैं मानता हूँ शायद वो पूरी उनकी गलती नहीं हो सकती, बट आपने बहुत इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो मैं बताऊँ, डिसाइड योर गोल, आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि 12th में कितने % आते हैं उसके ऊपर हम गोल डिसाइड करेंगे। गोल ऐसे डिसाइड नहीं होता है। गोल कैसे डिसाइड होता है, आप जो भी उम्र में है अभी, तो आप बैठिए, आप सोचो क्या करना चाहते हो। सपोज आप फाइटर पायलट बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बनना है, कितने % आने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट लेना है। इसी तरह से अभी से अगर आपने एक अपना गोल डिसाइड कर लिया
तो मैं मानता हूँ आपका फोकस बहुत इजीली आ जाएगा। और जो 2 M है उसको आपको अवॉइड करके 1 M को सिलेक्ट करना है। 2 M है मित्र और मोबाइल, उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करो। सब बुरा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। और एक जो है M, दैट इज मेहनत। मेहनत को आपको अपना लेना है। मैं मानता हूं कि आपको अपनी मंजिल पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। जी सर, that was so nice. And sir, like the modern challenges we see के आजकल जितने भी वॉर हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ उनमें ड्रोन्स का यूज बहुत ज्यादा रहता है। सो इज इट ड्रोन्स और स्पेस डिफेंस? सो हाउ डू यू व्यू द फ्यूचर ऑफ द एयरफोर्स? सी, मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर ऑफ द एयरफोर्स अगर आपको जानना है तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें हमने जो आतंकवादियों के 9 अड्डे तबाह कर दिए, और उसके बाद पाकिस्तान ने ये समझा कि ये हमारे पर अटैक है। वैसे वो सही है क्योंकि आतंकवादी को पनाह तो वो ही दे रहा है। हमने तो आतंकवादी पाकिस्तान को बोला था कि आपके ऊपर हमला नहीं किया, आतंकवादी को हमने हमला किया है। तो इन्होंने क्या किया, हमारे डिफेंस लोकेशन और जो सिविलियन पॉपुलेशन था उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, और इन्होंने ड्रोन से भी अटैक किया। तो उसके बाद हमने जो जवाब दिया है वो पूरी दुनिया ने देखा है, ठीक है। और पाकिस्तान और उनके जो आका है, जो 2-4 कंट्री है, इनको भी समझ में आ गया, इनकी भी शान ठिकाने पे आ गई कि भारत में क्या दम है। और इंडियन एयरफोर्स ने इनके जो 11 जो एयरबेसिस थे वो इस तरह से तबाह किए हैं कि इनको वापस उठने में बहुत टाइम लग जाएगा। पाकिस्तान हमें डरा रहा था कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, तो हमने उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जहां पर रखी हुई थी उसको भी हम हेलो करके आ गए, राइट। तो ये बताता है कि इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी क्या है। इंडियन एयरफोर्स में एक चीज हमेशा लिखी जाती है, बोली जाती है, और वो मैं हर जगह में बताता हूँ। वो है, एक सेंटेंस लिखा जाता है, इफ यू स्वेट इन पीस, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो हमारा यही है, हम इतना अच्छा अटैक क्यों कर पाए। हमने ये जो पिन पॉइंट अटैक किया, हर एक तबाह किए उसके एयरबेसिस को, पूरी एयर डिफेंस को हमने खत्म कर दिया था। पाकिस्तान अगर और कुछ गुस्ताखी दिखाता तो चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान को बता दिया था कि इससे आगे तुमने कुछ भी गुस्ताखी दिखाई तो हम भी बचा नहीं पाएंगे। और इसीलिए पाकिस्तान अपने घुटने पे आ गया और हमको रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए, है ना। और हम भी ये युद्ध को इतना एस्केलेट करके फुल फ्लेज वॉर में ले जाना नहीं चाहते थे। हम तैयार थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स तैयार थी, बट हम कभी भी फुल फ्लेज वॉर में अननेसेसरी इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान को दिखा दिया हम क्या कर सकते हैं, और ये जो मैसेज गया वो चाइना को भी गया, अमेरिका को भी गया, राइट। तो सब लोग समझ गए कि भारत की कैपेसिटी क्या है। मैं मानता हूँ अभी के जो वॉर है उसमें शायद हमें बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा हमारे राफेल प्लेन और ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है, इन्होंने किस तरह से तहस तहस कर दिया, राइट। और ये बताता है हमारी जो एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी थी। आप देखिए पाकिस्तान ने जो चाइनीज चीपर ड्रोन्स आते हैं वो ड्रोन हमारे पे छोड़ते गए, बट हमने एक भी ड्रोन को इंडिया पे किसी तरह नुकसान नहीं होने दिया। ये दिखाता है कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितनी स्ट्रांग है। एंड उसके साथ साथ ये जो ड्रोन है, हमने जो अटैक किए ड्रोन से और मिसाइल से, वो इतने पिन पॉइंट है। तो मैं मानता हूँ कि आजकल हम जो मोदी साहब ने आत्मनिर्भर वाला ये जो मेक इन इंडिया वाला मुहिम जो छेड़ा है, इसमें हम 100% कामयाब हुए। और हमने कुछ भी ऐसे विदेशी शस्त्रों का यूज ना करते हुए हमने आत्मरक्षा की ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, उसके बाद जो हमने अटैक किए उसके द्वारा दिखा दिया कि आर्मी नेवी एयरफोर्स ये तीनों मिलके सक्षम है। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी महासत्ता अगर हमारे ऊपर आंख उठा के देखती है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का है। So sir, if you want to make an impact into the today's generation, so what would it be? A message? मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में दे ही दिया कि एक ही चीज सोचिए, कहीं पर भी कुछ चीज जो आपको पसंद नहीं आती है ऐसी दिखाई दे तो बिफोर कंप्लेनिंग
या तो अपने आप से नेवर आस्क व्हाई मी, बट आस्क व्हाई नॉट मी। अगर कुछ चेंज करना है तो आपके पापा मम्मी, आपके टीचर या कॉरपोरेशन या सरकार क्यों चेंज करेगी, आप क्यों नहीं कर सकते? सो वन मैसेज, ऑलवेज नेवर आस्क व्हाई मी, ऑलवेज आस्क ट्राई मी। That's so nice. So we'll always remember it. Why me? We don't have to ask that. It's Try why me. not me? Why not me and try me? Okay. So, on behalf of Vidya Bhavan Voices, I'm Shraddha, thanking our wonderful guest for sharing such inspiring insights and thanking you, our listeners, for being with us. Because